السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی. آج مورخہ 19 اپریل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ اردو نیوز بلیٹن دوربین. آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم اور بڑی خبروں کے ساتھ. پی ایم مودی کے خطاب پر سیاست گرم. ملکارجن کھڑگے کا نریندر مودی پر بڑا الزام. سرکاری خطاب کو سیاسی تقریر میں بدل دیا گیا. انتخابی ضابطۂ اخلاق کے دوران اپوزیشن کو نشانہ بنانے کا الزام، جس پر جمہوریت اور آئین کی خلاف ورزی کی بحث تیز ہو گئی. بہار کی سیاست میں بڑا موڑ. سمراٹ چودھری نے سنبھالی کمال، مگر 24 اپریل کو اعتماد کا امتحان. تمل ناڈو میں سیاسی ہلچل. راہل گاندھی کا جذباتی وار. میرے والد نے سب کچھ قربان کر دیا. حج 2026 کا روح پرور آغاز. پہلی پرواز 371 عازمین حج کے ساتھ دہلی سے روانہ. کینیڈا کا سخت امیگریشن قانون. 30,000 طلبہ پر ملک بدری کی تلوار. ہزاروں پنجابی بھی متاثر. ابنائے ہرمز میں کشیدگی. عروج پر ایران کی فائرنگ. ہندوستانی جہاز بھی نشانے پر. 50 دن بعد ایران کا پہلا فیصلہ. ایئر اسپیس جزوی طور پر بحال، مگر ڈیجیٹل بلیک آؤٹ جاری. عالمی تیل بحران کا خطرہ. ایران نے ابنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی. امریکہ پر سنگین الزام. آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ فکر و نظر ٹی وی کا اردو پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کے قوم سے خطاب کے بعد ملک کی سیاست میں زبردست ہلچل مچ گئی ہے. خطاب ختم کرتے ہی کانگریس پارٹی کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا اور پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیر اعظم پر شدید الفاظ میں نکتہ چینی کی. کھڑگے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ خطاب کم اور سیاسی حملہ زیادہ تھا. ان کے مطابق حکومت نے ایک سرکاری پلیٹ فارم کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جو جمہوری روایات کے خلاف ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں اپوزیشن، خاص طور پر کانگریس پارٹی کو نشانہ بنایا اور اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی. کانگریس پارٹی کے صدر نے کہا کہ خطاب میں بار بار کانگریس کا ذکر کیا گیا، جبکہ عوامی مسائل جیسے مہنگائی، بے روزگاری اور معیشت پر کوئی واضح بات چیت نہیں کی گئی. ان کے مطابق یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہے. کھڑگے نے خواتین ریزرویشن کے معاملے پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ حکومت صرف وعدے کر رہی ہے جبکہ عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ خواتین کو فوری طور پر سیاسی نمائندگی دی جائے اور وعدوں کو حقیقت میں بدلا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ ملک اس وقت بڑے چیلنجز سے گزر رہا ہے، لیکن وزیر اعظم کے خطاب میں ان مسائل کا کوئی ٹھوس حل پیش نہیں کیا گیا. ان کے مطابق عوام کو جواب چاہیے، نہ کہ صرف سیاسی بیانات. آخر میں کھڑگے نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں اختلاف رائے کو دبانا درست نہیں اور حکومت کو عوامی مسائل پر سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے. کہ انہی لوگوں نے संसद میں مہیلا آرکشن کو روکنے کا جشن منایا تھا، خوشیاں منائی تھی. بہار کی سیاست میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں ریاستی اسمبلی کا ایک روزہ اجلاس 24 اپریل کو طلب کیا گیا ہے. اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی قیادت والی نئی حکومت کو ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کرنی ہوگی. یہ 18ویں بہار اسمبلی کا دوسرا اجلاس ہوگا. اس کی باضابطہ اطلاع 18 اپریل کو جاری کی گئی ہے. اسمبلی سیکریٹریٹ نے تمام ارکان اسمبلی، وزراء اور وزیر اعلیٰ کو اس اجلاس کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے. یاد رہے کہ حال ہی میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد سمراٹ چودھری نے 15 اپریل کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا تھا. یہ تبدیلی اس وقت سامنے آئی جب نتیش کمار راجیہ سبھا کے رکن بن گئے. اس کے بعد ریاست میں نئی حکومت تشکیل دی گئی. آئینی روایت کے مطابق کسی بھی نئی حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرے. بہار اسمبلی کے لیے نومبر 2025 کے انتخابات میں NDA کو واضح اکثریت حاصل ہوئی تھی، جہاں 202 ارکان اسمبلی منتخب ہوئے. ایسے میں
सम्राट हुकूमत के लिए एतमाद का वोट हासिल करना बज़ाहिर आसान दिख रहा है। इधर नई हुकूमत की तश्कील के फौरन बाद वज़रा के दरमियान महकमों की तक़सीम भी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने खुद अपने पास 29 अहम महकमे रखे, जिनमें जनरल एडमिनिस्ट्रेटर, दाखिला और काबीना सेक्रेटरी और निगरानी जैसे कलीदी शोबे शामिल हैं। नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी को 10 महकमे, जबकि दूसरे नायब वज़ीर आला विजेंद्र प्रसाद यादव को 8 महकमों की जिम्मेदारी दी गई है। ताहम काबीना की तौसी अभी भी बाकी है, इस पर सियासी हलकों की नजरें टिकी हुई है। अब रुख करते हैं तमिलनाडु का, जहां असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी माहौल काफी गर्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने तिरुवल्लुवर जिला के पुरलीली में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्लियामान में हाल ही में पेश किया गया बिल दरअसल तमिलनाडु की सियासी ताकत को कमजोर करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। राहुल गांधी के मुताबिक ख़वातीन रिजर्वेशन के नाम पर पेश किए गए इस पीछे असल मकसद हदबंदी के जरिए रियासत की लोकसभा सीटों को कम करना है। अपने खिताब में राहुल गांधी जज्बाती भी नजर आए। उन्होंने कहा कि अगरचे वो तमिलनाडु में पैदा नहीं हुए, लेकिन वो खुद को इस रियासत के लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने अपने वालिद राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने तमिलनाडु के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर इल्जाम लगाया कि वो तमिलनाडु को इस जबान, सकाफत और शनाख्त को खत्म करना चाहती है। उनके मुताबिक ये आइन के विफाकी ढांचे के खिलाफ है, जहां हर रियासत को अपनी शनाख्त बरकरार रखने का हक हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी तमिलनाडु को दिल्ली से कंट्रोल करना चाहती है और एक ऐसा वज़ीर आला चाहती है जो सिर्फ मरकजी क़यादत के इशारों पर काम करे। इंतखाबात की बात करें तो तमिलनाडु असेंबली के लिए वोटिंग 23 अप्रैल को और एक ही मरहले में होगी, जबकि नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। इस बार मुकाबला एनडीए के इत्तेहाद और एआईएडीएम के इत्तेहाद के दरमियान सख्त होने का इम्कान है, जबकि नई सियासी कुव्वतें भी मैदान में हैं। अब एक रूहानी और खुशी की खबर, हिंदुस्तान से हज 2026 का बाकायदा आगाज हो चुका है। गुज़िश्ता रोज सुबह 7 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 371 आज़मीन हज पर मुश्तमिल पहला काफिला मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुआ। आज़मीन की रवानगी के लिए एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजाम किए गए और हफ्ते की रात से ही आज़मीन का पहुंचना शुरू हो गया था। इस काफिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले खुशनसीब शामिल थे। इस मौके पर एक खुसूसी तकरीब भी मुनक़िद की। इसमें सऊदी अरब के नायब हज मिशन मईसत और मिशन समेत मुतअद्दिद आला हुक्काम मौजूद थे। हज इंतजामात के लिए वज़ारत अक़लियती उमूर, हज कमेटी ऑफ इंडिया और दीगर इदारों ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की है। इस साल हिंदुस्तान से 1,75,000 से ज़्यादा आज़मीन हज अदा करेंगे। और इसके साथ ही हुकूमत ने आज़मीन के लिए इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाकर तकरीबन 6.25 लाख रुपए कर दिया, ताकि सफ़र के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल में माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। मज़ीद ये कि मक्का मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन सर्विस तकरीबन 60,000 आज़मीन मुस्तफ़ीद होंगे, जिससे उनका सफ़र मज़ीद आसान और आरामदायक हो जाएगा। बैनुल-अक़वामी खबरों में कनाडा ने एक नया इमिग्रेशन कानून मंजूर किया है, जिसने हज़ारों गैर मुल्की तलबा के लिए मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना दिया है। बिल C-12 के तहत तकरीबन 30,000 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें 9,000 के करीब पंजाबी तलबा भी शामिल हैं। उन अफराद को 21 दिन के अंदर जवाब देना होगा, बसूरत दीगर उन्हें मुल्क बदली किया जा सकता है। नए कानून के तहत के मुताबिक अब किसी भी शख्स को कनाडा के आने के लिए 1 साल के अंदर पनाह गुज़ीन की दरख्वास्त देना लाजमी होगा। इससे पहले इस तरह की कोई वक्त की हद बंदी नहीं थी। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर काम करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई का भी इंतजाम किया गया है। इसमें बराह रास्त मुल्क बदली शामिल है। इस फैसले के खिलाफ कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में तलबा ने एहतजाज भी किया है और हुकूमत से कवानीन में नरमी का मुतालबा किया है।
अब चलते हैं मशरिक़ वस्ता की जानिब, जहां सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में अपनी मौजूदगी मजबूत करते हुए तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग की है। इस वाक़े के बाद खलीजी खित्ते में जंग जैसी हालात पैदा हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक वो 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जिनमें एक हिंदुस्तानी जहाज़ भी शामिल था। खुशकिस्मती से उस वाक़े में किसी भी अमले को नुकसान नहीं पहुंचा। भारत ने इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ईरानी सफ़ीर को तलब किया है, जबकि समुद्री सिक्योरिटी की मज़ीद मजबूत कर दिया गया है। इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को उसकी फौज से इजाजत लेना जरूरी होगी। ईरान ने अपना हुर्मुज़ को दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद आलमी सतह पर तशवीश बढ़ गई है। ईरान की फौजी क़यादत के मुताबिक यह फैसला अमेरिका की जानिब से जारी नाकाबंदी के रद्द-ए-अमल में लिया गया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि जब तक अमरीकी पाबंदियां खत्म नहीं होती, ये अहम समुद्री रास्ता मुकम्मल तौर पर नहीं खुलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। याद रहे कि अपना हुर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम तेल गुजरगाहों में शामिल होती है। दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील इसी रास्ते से होती है। माहिरीन के मुताबिक इस रास्ते की बंदिश आलमी मईशत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तेल की सप्लाई मुतासिर होने से कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद को जुज़वी तौर पर बहाल करने का ऐलान किया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मशरिक़ ईरान से गुजरने वाली बैनुल अक़वामी परवाज़ों को इजाज़त दी गई है। कुछ हवाई अड्डे भी सुबह के वक्त खोल दिए गए हैं ताकि परवाज़ों का सिलसिला बहाल हो सके। ताहम सिक्योरिटी खदशात के बाइस कई एयरलाइंस अब भी ईरान के ऊपर से गुजरने से गुरेज कर रही है। फ्लाइट ट्रेनिंग डेटा के मुताबिक ज़्यादातर तैयारे मुतबादिल तवील रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। ईरान का है कि मरहला वार पूरे मुल्क में फिजाई ऑपरेशन बहाल की जाएंगे। दूसरी जानिब अपना हुर्मुज़ अब भी मुकम्मल तौर पर खुला नहीं है, जिससे आलमी तिजारत मुतासिर हो रही है। बरतानिया समेत कई ममालिक ने मामूल की शिपिंग बहाल करने की अपील की है। इस तमाम सूरत हाल के दरमियान ईरान में इंटरनेट बंदिश बदस्तूर जारी है। टेक ब्लॉग्स के मुताबिक डिजिटल ब्लैक आउट को 50 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस तवील पाबंदी से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी और कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। माहिर का कहना है कि यह सूरत हाल आलमी राब्तों और मईशत पर भी असर डाल सकता है। गुज़िश्ता पेशकश में कई अहम साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्र नज़र TV। शुक्रिया।